So good morning everyone, welcome to online classes of Leal Public School. This is our science class and today we will discuss our chapter number 13. Chapter name is Green and Clean Earth. So let's start. What we will learn in this chapter, we will discuss about importance of trees, how to save trees, then our environment, types of pollution, biodegradable waste and non-biodegradable waste, and how we can save our environment. हम अपने environment को कैसे save कर सकते हैं? Different topics को हम इस chapter में discuss करेंगे. Okay? Already वैसे आप trees की क्या importance है? What is our environment? And कैसे हम अपने environment को save कर सकते हैं? ये सारे topics आप previous classes से discuss करते आ रहे हैं. Okay? Science में आपने पढ़ा है, SST में भी आप discuss कर चुके हैं. So we will discuss here it again. Okay, so let's start. The earth is home to plants, animals and human beings. Beside living things, many non-living things are found on the earth. Some of these are air, water, mountain, soil, rocks and clouds. Okay, earth जो है यहाँ पर life exist करती है. We all know, हमने previous chapter में भी discuss किया है. And ये plants, animals and human beings के लिए earth क्या है? Home है. Okay. And these all are living things. Okay, plants, animals and human beings are living things, but living things के अलावा earth पर non living things भी present है, like air, water, mountain, soil, rocks and cloud, etc. Clear? So look at the picture below and write L for living things and N for non-living things in the boxes provided. Okay, यहाँ पे हमें box provide करवाए गए हैं जिसमें कि जो living things हैं उनके लिए हमें L लिखना है and जो non-living things हैं उनके लिए हम N word का use करेंगे. Okay, so tree के लिए हम क्या use करेंगे? Tree is a living thing. Then birds are also living things. Clouds are non-living things. Mountains are non-living things. So you can write over here N. Boys is living things. Dogs are also living thing. Then swing is non-living thing and water is also non-living thing. Clear? Now, importance of trees. Trees are useful to us in many ways. They give us fruits, vegetables, cereals, medicines, wood, paper, rubber, etc. They also give us oxygen to breathe. Their roots hold the soil and prevent it from getting washed away by wind or water. But nowadays, human beings are cutting trees to create more land for increasing populations. Okay, so trees जो हैं वो बहुत सारे तरीके से हमारे लिए beneficial हैं. You all know that trees से हम क्या get कर सकते हैं? Fruits हैं, vegetables हैं, cereals हैं. मीन्स अनाज जो हम ईट करते हैं, वीट, राइस, मेज. ओके, मेडिसिनल प्लांट से हम मेडिसिन गेट कर सकते हैं, लाइक टर्मरिक है, तुलसी प्लांट है. ओके, वुड, पेपर एंड रबर एक्सेट्रा, ये सारी जो थिंग्स हैं ये हम ट्रीज से गेट कर सकते हैं. एंड ट्रीज हमें ऑक्सीजन भी गिव आउट करते हैं, ट्रीज जो कि हम ब्रीदिंग में यूज करते हैं, सांस लेने में. क्लियर? एंड ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या करके रखती हैं? होल्ड करके रखती हैं. प्रीवियस चैप्टर में हमने जब प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है तो ऑलरेडी प्लांट्स पार्ट हमने डिस्कस किए थे. तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो अंडर द ग्राउंड ग्रो करती हैं एंड जिस भी प्लेस पर प्लांट ग्रो कर रहा है वहां की जो सॉइल है उसे प्लांट्स की रूट जो है टाइटली होल्ड करके रखती हैं. दैट्स वाई जब भी तेज हवा चलती है या हाई स्पीड से वहां पर वाटर फ्लो करता है तो वहां की जो सॉइल है, ट्रीज के आसपास की जो एरिया की सॉइल है वो इजीली वहां से वॉश्ड अवे नहीं होती है. मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करती है बिकॉज उस सॉइल को प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसने टाइटली क्या करके रखा है? होल्ड करके रखा है. क्लियर? बट अगर हम ह्यूमन बीइंग जो है कंटिन्यूसली ट्रीज को कट कर रहे हैं बिकॉज उन्हें ज्यादा जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है तो लैंड का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है तो ट्रीज की कटिंग की जा रही है. दैट्स वाई क्या हो रहा है? यहाँ पर प्लांट्स प्रेजेंट नहीं है तो इट मीन्स यहाँ की सॉइल क्या है? लूजन हो गई है यहाँ से, है ना. यहाँ पर लूज सॉइल है, उसे जो प्लांट की रूट्स थी जो कि सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती थी वो प्लांट्स यहाँ पर अब अवेलेबल नहीं है. So also trees are being cut to meet the demand of increasing population. Okay, जैसे जैसे population increase होती जा रही है trees को cut करने की जो demands है वो भी increase होती जा रही है. different जो items हैं वो हम plants से made up करते हैं. ठीक है? So cutting down of trees in large number is known as deforestation. Okay, so in trees को बहुत ज्यादा number में cut करना, large number में cut करना due for human needs is called deforestation. Okay.
Now, as a result of deforestation, we are losing forest and wildlife. Okay, and deforestation की वजह से क्या हो रहा है, हम अपने जो जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उनको हम लॉस करते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं जो जंगल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, एंड वाइल्ड लाइफ भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. ओके, बिकॉज जो एनिमल्स थे जो कि फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं, ओके, तो अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होंगे, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, जिंदा नहीं रह पाते. ओके, तो हम फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ का लॉस करते जा रहे हैं ड्यू टू डिफोरेस्टेशन. ओके, now how to save tree? So we should not cut trees. If we need to cut them for our use, we should plant more trees than we cut, and growing trees in large number is known as afforestation. Okay, तो हमें trees को cut नहीं करना चाहिए, but फिर भी हम अगर अपने use के लिए, अपनी needs के लिए trees को अगर cut करते हैं, तो जितने ज्यादा हम trees cut करते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा amount हमें plants को, trees को plant करना चाहिए, लगाना चाहिए. So growing trees in large number is known as afforestation. और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट्स में, ज्यादा से ज्यादा लार्ज नंबर में ट्रीज को ग्रो करना क्या कहलाता है, अफोरेस्टेशन. ओके, so we should not waste paper because a lot of trees are cut down to make paper, and we should use both side of paper. Okay, so we all know कि जो papers हैं वो भी किससे made up होते हैं, trees से, plants से बनाए जाते हैं. तो हमें paper को बिल्कुल भी waste नहीं करना चाहिए, because बहुत सारे papers हम अगर waste करते हैं तो और ज्यादा paper create करने के लिए या paper made up करने के लिए ज्यादा trees को cut करना पड़ेगा. Okay, and जब भी आप किसी paper को use करते हैं तो उसके both side को properly आप use करिए, उसके बाद आप उस paper को throw करिए. Clear? We should avoid using wood as fuel to cook food. Instead, we should use biogas or LPG, liquefied petroleum gas, for cooking. Okay, इसी तरह से हम as a fuel खाना बनाने के लिए चूल्हे वगैरह में भी हम wood का use करते हैं. Okay, तो वो भी हमें avoid करना चाहिए. उसकी जगह पर हमें बायोगैस या फिर जो LPG गैस है, जिसे कि हम liquefied petroleum gas भी कहते हैं, वो हमें cooking में use करनी चाहिए. Everyone of us should plant trees and take care of them. हम सबको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो trees हैं वो plant करने चाहिए and उनका take care करना चाहिए. One Mahotsav is celebrated every year in July for 1 week in India, and lakhs of trees are planted all over the country. Okay, इंडिया में every year जुलाई में एक वीक के लिए, 1 वीक के लिए वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है. और इस टाइमिंग में इंडिया में भी एंड ऑल ओवर कंट्री में भी lakhs of number of trees जो हैं वो क्या किए जाते हैं, प्लांट किए जाते हैं. ज्यादा से ज्यादा जो ट्रीज हैं प्लांट किया जाता है. World Environment Day is observed all over the world on 5th June every year. On this day, people talk about ways to save the environment. Okay, and 5th June को all over the world हम क्या celebrate करते हैं, World Environment Day. और इस दिन हम ज्यादा से ज्यादा जो trees हैं वो plant करते हैं. How to save the environment, कैसे, क्या ways या क्या तरीके हो सकते हैं जिनको follow करके हम अपने environment को save कर सकते हैं. तो इन सारे जो ways हैं, जो तरीके हैं या जो कुछ आइडियाज हैं, उन पर डिस्कशन किया जाता है. ओके, बात करते हैं लोग. Now come to true false. First one is we should cut trees. This statement is false. We should not waste paper. This statement is true. Trees gives us oxygen. Yes, this statement is true. Trees क्या है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं. This statement is true. World Environment Day is observed on the 5th June every year. This statement is true. And deforestation is resulting in the loss of wildlife. This statement is also true. Okay, deforestation होगा अगर हम जो trees हैं, number of trees वो cut करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हम forest का और wildlife का क्या हो रहा है, loss हो रहा है. Clear? Now next topic is our environment. Our environment is made up of both living and non-living things. We depend on the environment for all our needs. Okay, जो environment है वो living and non-living things दोनों चीजों से मिलकर बनता है, and हमारी बहुत सारी needs के लिए हम environment पर depend करते हैं. We get food, furniture, clothes, books, newspaper and many more things from the environment. Okay, environment से हम ये बहुत सारी चीजें जो है get करते हैं, things.
Many human activities are damaging the environment. Okay, but nowadays बहुत सारी human activities ऐसी हैं जो कि environment को क्या कर रही हैं, damage कर रही हैं, उसे harm कर रही हैं. For example, smoke from factories and vehicles is making the air dirty. Factories and vehicles से निकलने वाली जो smoke है, जो धुआं है, वो क्या कर रहा है, air को polluted कर रहा है, air को dirty बना रहा है. This dirty air can make us fall sick. And ये जो dirty air है, ये हमें क्या कर सकती है, बीमार कर सकती है, because हम air में present oxygen को breathing के लिए use करते हैं, but air में और भी अगर harmful gases जो mix होती हैं, smoke mix होता है, तो वो भी breathing के through हम जब breathing करते हैं तो हमारी body में enter कर सकता है और हमें बीमार बना सकता है. So any undesirable change in the environment brought about by human beings that can cause harm or discomfort to human beings and other living organisms is called pollution. Okay, तो pollution किसे कहेंगे हम? ऐसा undesirable change means जो हमारे लिए comfortable नहीं है human beings के लिए and जो other living organism है उनके लिए, उनको harm करता है या वो उस environment में comfortable feel नहीं करते हैं, discomfort है, तो ऐसा जो undesirable change है that is called pollution. And the substances that cause pollution are called pollutants. और ऐसे substance, ऐसे things जो कि pollution कर रही हैं, pollution को increase कर रही हैं, like smoke की हमने अभी बात की, तो smoke क्या कर रहा है, air को dirty कर रहा है, तो smoke is a pollutants. Okay, तो ऐसी और भी बहुत सारे substances जो कि pollution create कर रहे हैं, तो ऐसे substances को हम क्या कहते हैं, pollutants. Clear? So there are 4 main types of pollution. That is air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. So there are 4 types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. Clear? Now come to first one, that is air pollution. So what is air pollution? The smoke from factories and vehicles mixes with the air and makes it unfit for breathing. Okay, फैक्ट्री से या व्हीकल से निकलने वाला जो स्मोक है, एंड उस स्मोक में बहुत सारी हार्मफुल जो गैसेस हैं वो भी मिक्स होती हैं, तो ये एयर को क्या कर रही है, डर्टी कर रही है एंड ब्रीदिंग के लिए अनफिट बना रही है. बर्निंग ऑफ वुड एंड वेस्ट मटेरियल ऑल्सो पॉल्यूट्स द एयर. इसी तरह से अगर हम वुड को बर्न कर रहे हैं या फिर और अदर जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें भी अगर बर्न करते हैं तो उनसे निकलने वाला जो स्मोक है उसमें भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि हमें सिक कर सकती हैं. एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स गिव आउट लॉट ऑफ स्मोक एंड पॉल्यूट्स द एयर. इसी तरह से हम क्रैकर्स जब बर्न करते हैं तो वो भी बहुत सारा स्मोक उससे निकलता है जो कि एयर को क्या करता है, पॉल्यूट्स कर सकता है. सो नाउ व्हाट इज द वे टू कीपिंग द एयर क्लीन? प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए. स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स, व्हीकल्स के इंजन को हमें स्टॉप कर देना चाहिए रेड लाइट्स पे. एंड वॉक और यूज अ बाइसिकल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस. और अगर आप थोड़ी ही दूर पर कहीं जा रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस पर, तो आपको या तो वॉकिंग करनी चाहिए या फिर अपनी बाइसिकल का यूज करना चाहिए. ओके, उस वक्त आपको व्हीकल का यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज व्हीकल से जो स्मोक निकलता है दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर? Now come to next one. Second is water pollution. So water pollution is caused by washing clothes or utensils in the water bodies. Okay, बहुत सारे आपने देखा होगा गांव में, विलेजेस में अभी भी जो पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं वहां पर जो पीपल हैं क्या करते हैं, क्लोथ्स जो है वॉश करते हैं या अपने यूटेंसिल्स जो है, बर्तन जो है वो वाटर बॉडीज में वॉश करते हैं. ओके, सो दिस इज कॉज वाटर पॉल्यूशन. Dirty water from our homes and factories goes into drain which release water into water bodies and pollute them. Okay, हमारे घरों से निकलने वाला जो dirty water है या फैक्ट्रीज से भी, बहुत सारी ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहां पर की वाटर का यूज किया जाता है. ओके, सो फैक्ट्रीज से निकलने वाला या जो हमारे घरों से निकलने वाला dirty water है वो भी डायरेक्टली वाटर बॉडीज में मिक्स होता है ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, तो वो भी उस वाटर को क्या कर रहा है, डर्टी कर रहा है. इसी तरह से विलेजेस में जो एनिमल्स हैं उनको भी बाथिंग करवाई जाती है पॉन्ड में या लेक में, सो इट कैन ऑल्सो मेक वाटर डर्टी. फार्मर यूज फर्टिलाइजर. इसी तरह से जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर यूज करते हैं. सो दीज फर्टिलाइजर्स आर कैरिड अवे बाय रेन एंड देन मिक्स विद वाटर बॉडीज देयरबाय पॉल्यूटिंग वाटर. ओके, इसी तरह से ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये भी जब रेनफॉल होता है तो रेन के फॉल के थ्रू ये भी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी वाटर के साथ में कैरी होकर इन वाटर बॉडीज में मिक्स होते हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं. ओके, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो कि फार्म्स में जो
क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, उस केमिकल अगर फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए, क्रॉप की गुड ग्रो के लिए इन फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है। ओके, बट ये जो फर्टिलाइजर्स हैं जब रेन वाटर के साथ में वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाते हैं तो वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं, बिकॉज वही केमिकल जो केमिकल है उस वाटर में, उसी वाटर को हम एज अ ड्रिंकिंग वाटर भी यूज करते हैं ना। पॉन्ड, लेक या रिवर से आने वाले वाटर को हम प्यूरिफाई करते हैं। सिटीज में आजकल जो प्यूरिफिकेशन प्लांट हैं वो लगाए गए हैं, इस वाटर को प्यूरिफाई करने की कोशिश की जाती है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो पीपल हैं उनके पास में ये वाटर जो है प्यूरिफाइड फॉर्म में नहीं पहुंच पाता है, तो अगर वो इस डर्टी वाटर को ड्रिंक करते हैं या यूज करते हैं तो वो सिक हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। क्लियर? सो हाउ टू कीपिंग द क्लीन वाटर, डू नॉट थ्रो गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। हमें वाटर बॉडीज में कभी भी गार्बेज जो है, वो कचरा जो है उसे थ्रो नहीं करना चाहिए। डू नॉट वॉश क्लोथ्स इन और नियर वाटर बॉडीज। तो हमें वाटर बॉडी के अंदर या आसपास कहीं भी अगर वाटर बॉडीज हैं तो वहां पर क्लोथ्स वॉश नहीं करने चाहिए। द डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज मस्ट बी treated first at water treatment plant and then allowed to go into water bodies। तो हमारे घरों से, होम से निकलने वाला जो आने वाला डर्टी वाटर है या जो फैक्ट्री से आने वाला जो डर्टी वाटर है, उससे पहले जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर कि इस डर्टी वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे, उसमें जो भी गार्बेज मिक्स है या जो भी केमिकल मिक्स है ना, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उससे सेपरेट आउट किया जाता है, उस वाटर को प्यूरिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो इन वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट्स हैं, पहले वहां पर इस वाटर को ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके बाद इन्हें वाटर बॉडी में रिलीज करना चाहिए। क्लियर? So I hope you all understood about today's topic. Our next topic we will continue in our tomorrow class. Okay. So thank you so much.